वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है विकास राजपूत ने और वीडियो का टाइटल है इंडियन पुअर एंड अमेरिकन पुअर अ शॉकिंग डिफरेंस, कैरोलिना गोस्वामी। और कैरोलिना गोस्वामी जी की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं और काफी वो करंट टॉपिक्स उठाती हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं यहाँ पर शाउट आउट देना चाहती हूँ प्रथमेश को, जिन्होंने हमें ईमेल की है। कल हमारी 3 वीडियोस नहीं आई, 2 वीडियो आई हैं। दोनों ने हमारी 3rd वीडियो को काफी ज्यादा मिस किया। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ इतना ज्यादा प्यार करते हैं। यस, और हमारे साथ लाइक हमारे साथ, और अगर वीडियोस नहीं आती तो आप लोगों को उस चीज की कमी महसूस होती है। ये आप लोगों का प्यार है हमारे साथ। बट अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इंडिया इन डिटेल्स चैनल को। उसके अलावा आपको ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। You must have heard the sensational story of the deceased Indian millionaire, a beggar from Mumbai who left behind certificates of fixed deposits and some cash. How strange is that? India and America, one is a developed country, the other one is still a developing nation. Unfortunately, homelessness, slums and poverty still exist in the 2 largest democracies of the world. However, there is something that makes Indian slums unique. No, I'm not talking about the beggars anymore. I want to tell you the shocking difference that I have personally experienced while visiting the poor neighborhoods in the 2 countries. The first difference is people. Happy, friendly and joyful people. In Indian slums you can find them everywhere, all the time. On the other hand, in America and also in many other Western nations, you tend to find anger and unrest when you visit the poor areas. I have personally experienced this. You do not see the smiling children who will come running towards you to hug you or to play with you. Instead, you see anger on people's faces. So, does it mean that Americans do not know how to be happy without money? On the other hand, in India, random strangers in the slums have hosted me and cooked for me. They showed me an immense generosity that I will never be able to forget. Many Western tourists love to photograph poor Indians. This is something that happens all the time, and quite often, most Westerners do it without asking for any kind of permission. On the other hand, have you ever tried to walk in the American slums with a camera, taking pictures or videos of the poor? You better not. Our friends and well-wishers warned us not to go to those areas with a camera. There can be serious safety issues. Why are the poor areas in the Western nations perceived as dangerous? Is it about drugs and crime? I was told that there are places in America where even the police do not feel very comfortable going. Forget about women's safety. On occasions, even men do not tend to feel very safe walking in American slums. It is something that isn't impossible to do, but is definitely not recommended. If you go to an American slum, you can find people that are unemployed, drug addicts, beggars, and even criminals who are on the run. The situation appears to be different in India. It doesn't mean that slums in India are crime-free, but Indian urban slums are definitely more like informal settlements which provide the migrants from other parts of the country an opportunity to live cheap and save money. Many residents in these Indian slums live there only temporarily until they are able to grow enough in their career to move out. These slums in India are massive entrepreneurial hubs. Mumbai's Dharavi is a good example. It looks like a self-created special economic zone. The recycling industry, pottery industry, textile industry. A simple walk can expose you to thousands of single-room factories. Hard-working, simple people whose products are even exported to other nations. The annual turnover of this Indian slum has been reported to be in the range of $500 million to $1 billion. As far as health and sanitation is concerned, the situation is bad in both American and Indian slums. In particular, San Francisco streets are suffering from an unfortunate poop crisis. To fight the problem,
the city officially started a poop patrol task force in 2018. To fight the problem digitally, a tech guy even started an app called Snaptrap, but the poop crisis in San Francisco still continues. While the administration in India might have broken several world records by constructing millions of toilets in a short period and are now striving to bring a behavioral change in Indians, the situation in San Francisco is going from bad to worse. More and more human feces are being spotted on San Francisco streets every year, and many will likely just go unreported. Among the reported ones, just in 2018, there were more than 28,000 poop sightings. When it comes to healthcare, things can be extremely difficult in America if you do not have at least $1,000 with you, an amount that is usually required to be paid if a person wants to be able to use their health insurance. That is why even those Americans who have health insurance often find it difficult to take advantage of the benefits of their health insurance. It was found that half of all insurance policyholders in the USA face a deductible of at least $1,000. Unfortunately, $1,000 is already too much for many Americans to have in their bank savings. In 2016, a survey by Go Banking Rates revealed that 34% of Americans have no money in the bank, and 69% of Americans do not have even $1,000 in savings. India's national healthcare program is a work in progress. In 2018, India launched an ambitious nationwide scheme which is said to be the world's biggest government health program and is expected to transform India's healthcare system. When it comes to the overall lifestyle in different budgets, nobody can beat India. While the American homeless are often seen eating bread or junk food, the poor in India can eat fresh, healthy food in various low-budget restaurants that are spread everywhere in various locations. In the West, poor people are seen buying second-hand clothes. In India, poor people can buy brand new clothes that are available for extremely low prices. The poor in India can even travel all over the country on trains. They can watch movies in cinema halls and do many things that the richest do while being on a low budget. And this is because in India, all types of lifestyles for various budgets are available. In the West, the minimum price for several things are already out of budget for many. Whether it is train ticket, house price, rentals, good quality food, fresh fruits and vegetables, or even clothes, they are out of the budget of many. God forbid, but if tomorrow you became poor, where would you wish to be? India or America? As a concerned global community, we should appeal to both nations to work hard in an effort to eliminate poverty and homelessness. See you again. बात करें इस वीडियो की तो सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा शौक हुआ हूँ इससे देख के कि वेस्ट में नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं क्योंकि हम जो है फिर भी खुश रहते हैं, खुश रहना सीख जाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यही है कि हम लोग खुश रहना जानते हैं कि हम लोग कैसे रह सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लेकिन ये है कि फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में लोग नहीं जाते। कुछ लोग चले भी जाते हैं मौजम, लेकिन वो लोग जो सर्वाइव कर रहे होते हैं, मुझे लगता है वो फिर भी थोड़े उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। बट काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में मेरे लिए नई थी और काफ़ी शॉकिंग भी थी, और उनमें से एक तो नो डाउट मैंने भी कभी ऐसे वेस्ट में स्लम एरिया नहीं देखा। जब भी हम लोग स्लम एरिया की बात करते हैं तो हम लोग इंडिया के स्लम एरिया की बात करते हैं, जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो वहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं। हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा है, जैसे कि धारवी बैग हम लोगों ने देखा था, वो नेस्ट डेली की वीडियोज़ में देखा था। और आज हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से और भी छोटी छोटी होम इंडस्ट्रीज बोलेंगे कि घरों में एक घर की इंडस्ट्री लगाई हुई है, और उसके अलावा लोग जो हैं वो कितने हॉस्पिटेबल हैं, खुश रहते हैं, मेहमान नवाजी इतने अच्छे तरीके से करते हैं। जबकि दूसरी साइड पर उन्होंने दिखा उन लोगों के चेहरों पर गुस्सा होता है,
एक उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम में भी हो जाता है। मैं वाकई चीज एग्री करता हूँ कि जैसे क्या नाम लेते हैं वीडियो में उन्होंने अपनी दिखाया कि वाकई में वो लोग खड़े थे बिल्कुल सीरियस होके, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप गुजर रहे हैं, कोई बच्चा खड़ा हुआ है, कोई बड़ा खड़ा हुआ है, आप उसे स्माइल देते हैं ना, वो भी आपको आगे से स्माइल पास कर देता है। और लिटरली आप जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे हम दूसरे शहर जाते हैं तो वहां पे अगर किसी से मिलते हैं और आप बताते हैं कि आप लाहौर से आए हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये चीज अभी भी है। और जैसे वीडियो में बताया कि भी लोग जो वेस्ट से आते हैं, फॉरेनर जितने भी आते हैं इंडिया में, और वो लोग आकर पिक्चर्स लेते हैं, उनको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होती हैं, बल्कि लोग बड़े शौक से आगे आते हैं, बल्कि लोग तो खुद कहते हैं आगे हमारे साथ पिक्चर लेते हैं, या बच्चे जिनसे तो उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट होती है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम चीजें देखते हैं वही चीज वेस्ट में, तो वहां पर लोगों आप ये हिम्मत ही नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वहां पर पुलिस का वॉक करना भी थोड़ा डेंजरस है, वो भी कंफर्टेबल नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया आते हैं या पाकिस्तान आते हैं, इनके यहाँ पे जब आके देसी कल्चर देखते हैं, लोग जो हैं उनसे मिलते हैं, तो वो भी हैरान होते हैं कि हाँ, उन्हें अट्रैक्ट करती है। और बहुत सारे लोग जो हैं यहीं पे रह जाते हैं। उसमें इंडिया में भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रह गए हैं, यहाँ के लोगों का प्यार देके, यहाँ के लोगों की मोहब्बत देके। और नो डाउट हम क्या नाम लेते हैं, जाना तो चाहते हैं उन कंट्रीज में, लेकिन अपना जो यहाँ पे एक कल्चर है, अपने जो यहाँ पे प्यार मोहब्बत अपना ये था ना, वो वहाँ पे नहीं हमें मिल सकती उस तरह। चीजें आप नो डाउट मिस करते हो, लेकिन वो एक बोलते ना कि बस चलते जाओ, चलने का नाम जिंदगी है। तो बस वही वाली चीज होती है कि हम लोगों को कुछ चीजों के लिए मतलब अपने फ्यूचर के लिए, या आप कह लो कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हालात को लेकर। लेकिन एक चीज जो सीरियसली मेरे लिए शॉकिंग थी, और उसमें ये था कि जैसे उन्होंने रिपोर्ट बताई, आई थिंक 2016 की थी, जो कि बैंक रिपोर्ट थी, मतलब 34% जो लोग हैं अमेरिकन, उनके पास $1000 सेविंग्स है ही नहीं। उनके पास है ही नहीं बैंक में सेविंग। और 69% जो हैं उनके पास $1000 उनके 69% के पास, हाँ, 34% उनके पास बैंक सेविंग है ही नहीं, बिल्कुल भी बैंक सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं है। ये वाकई में एक अजीब सा लगा। हम लोग ऐसे लगता है लोग बड़े अमीर लोग हैं, ये इनके पास इतनी फैसिलिटीज हैं, और इनको क्या प्रॉब्लम होगी। और एक और चीज है हेल्थ। यहाँ पे हमारे जैसे हम जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नो डाउट बहुत ज्यादा जलालत होती है, बहुत ज्यादा वो तंग होते हैं, लेकिन मुफ्त में यार हमें सब कुछ मिल जाता है। और जैसे उनकी बात करें, उनकी इंश्योरेंस हुई होती है, लेकिन वो जो इंश्योरेंस क्लेम वो करवाते हैं उसमें भी इतनी जितना उन्हें भागदौड़ करनी पड़ती है ना, तो भागदौड़ आपको बेसिकली पैसों के लिए करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात बोलूंगी, जैसे उन्होंने वीडियो में बोला, और अभी रिसेंट इंडिया में जो मेडिकल को लेकर कितनी ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। और रिसेंटली 15 अगस्त में जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक, मैंने बताया था कि कार्ड जो है वो हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें चिप लगी होगी और वो लोगों को दी जाएगी, और उनका उससे मेडिकल फ्री होगा। और मतलब ये कि करप्शन कम से कम उस चीज को खत्म करने के लिए, या और ज्यादा साफ शफाफ तरीका रखने के लिए इतने ज्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स मुझे ये अच्छी लगी वीडियो में देखकर कि उन्होंने जहां पर एक हमारे रीजन की प्रॉब्लम्स दिखाई है, वहां पर उन्होंने वेस्ट की प्रॉब्लम भी दिखाई, जो बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है। और हम लोग वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी नेगेटिविटी हम लोगों को क्योंकि दिखाई नहीं जाती, इसलिए हम लोग को पता नहीं होता कि वहां पर भी लोग भूख से मरते हैं, कितना ज्यादा, मतलब वहां पर भी भिखारी होते हैं, वो भी मांगते हैं, लोग कितने ज्यादा तंग हैं। तो ये चीजें अब हमें आकर पता चलती हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे हम यहाँ पे हमारी एक फैमिली सिस्टम है, हम लोग जो है कोई दुख हो कोई सुख हो एक दूसरे से बांट बूंट लेते हैं। फिर उसके अलावा हमें फ्रेश खाना खाने को मिलता है, हमें पैक जो फूड है वो नहीं मिलता। सबसे अच्छी चीज है जो है हमें जो फ्रेश खाना है, हमें ताजा खाना हर दूसरे टाइम मिलता है। बिल्कुल, कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर रेंट की भी बात करें, अगर आप यहाँ पे रेंट पे भी घर लेते हैं
हैं आपको 8-9 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अगर यूएस की बात करें या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे जहाँ तक सुना है रेंट भी बहुत ज्यादा है, लोग शेयरिंग पे रहते हैं ज्यादातर। और मौसम एक और चीज पता है क्या अच्छी है हमारे रीजन की, जो देसी है उसकी अच्छी है कि अगर जैसे आप बाहर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई ना, 100 लोग इकट्ठे होकर आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। सही बात है, कोई टेंशन नहीं है, हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। और अगर यही चीज अगर हम वेस्ट में अप्लाई करें, वहां पर लोगों की जिंदगी इतनी मसरूफ होती है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि वो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले सके। मतलब ये वाला इंटरेस्ट नहीं मैं कह रही कि आप पोक करते जाएं किसी को, मतलब हेल्प ये नहीं दिला वजह एक दूसरे को तंग करने वाला, यानी कि आप हेल्प कर सकें। बट ये है कि जो भी है हमारा रीजन, हमारे कंट्रीज जितना भी मतलब इकट्ठा है कि रहा हुआ, ये बहुत खूबसूरत है। चाहे इसमें जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हैं और आने वाले टाइम में भी मे बी प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स क्योंकि कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जो मजा यहाँ का है ना वो कहीं पर नहीं है। चाहे वो खानों का हो, त्योहारों का हो, कपड़ों का हो या जिंदगी की किसी भी मोमेंट का हो, यहाँ पर मजा बहुत ज्यादा है। वेल इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हमारे वीडियोस हमारे चैनल को वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।